ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت اور MQM کے درمیان ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کا معاملہ طے پا گیا۔ اس حوالے سے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے جلد نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کی نوید بھی سنا دی۔ MQM مرکز پر مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایک دو دن میں MQM پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر تعینات ہو جائے گا۔ MQM جسے بھی نامزد کرے گی اسے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا جائے گا۔ MQM اتحادی ہے اور ہم مل کر اس شہر اور اس صوبے کے مسائل کو حل کریں گے۔ سندھ حکومت نے شہر کراچی میں MQM پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کی نوید سنا دی ہے۔ سندھ حکومت اور MQM کے درمیان ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کا معاملہ طے پا چکا ہے، جبکہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے جلد نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کی نوید بھی سنا دی۔ MQM مرکز پر مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایک دو دن میں MQM پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر تعینات ہو جائے گا۔ MQM پاکستان جسے بھی نامزد کرے گی اسے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا جائے گا۔ ناصر شاہ نے کہا کہ MQM پاکستان اتحادی ہے اور ہم مل کر شہر اور اس صوبے کے مسائل کو حل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے سینٹ کے امیدوار وقار مہدی کے ہمراہ MQM پاکستان کے رہنما وسیم اختر جاوید حنیف سمیت دیگر اراکین رابطہ کمیٹی سے سینٹ کے الیکشن میں دست برداری کے لیے ملاقات کی۔ میڈیا ٹاک میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ MQM اگر وقار بھائی کے حق میں دست بردار ہوگی تو وہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے چند روز میں MQM کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کی نوید بھی سنائی۔ پارٹی کی قیادت اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو رول ہی ادا کرتی رہی ہے اور ہماری اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آج بھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اور کل بھی ہے۔ تو 148 کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ قانون سازی کافی حد تک ہو چکی ہے مشاورت کے ساتھ، اور جو منتخب میئر ہوں گے کراچی ہو، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، نواب شاہ، جہاں جہاں کارپوریشنز ہیں ان کو با اختیار کر دیا گیا ہے۔ جو بات ہوئی ہے MQM کے ساتھ پہلے دن سے اس میں بالکل یہ حتمی بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ MQM کی طرف سے جو نامزد ہوگی ان کو دیا جائے گا۔ خود ابھی ایک دو دن پہلے نام دیا گیا ہے تو وہ ضرور ہو جائیں گے جو بھی ہے، اور یہ ان کے ہے جو ہماری بات ہوئی تھی، جو ایگریمنٹ کہہ لیں یا جو سیاسی بات ہماری ہوئی ہے۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بوکلاہٹ کا شکار ہے۔ خان صاحب آخری دم تک یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل نہ ہو بلکہ یہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ آپ نے ان کے بیانات سن لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں سازش نہیں تھی تو انہوں نے روکا کیوں نہیں، مطلب غیر آئینی طور پر وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ادارے اپنا رول ادا کریں اور ان کی حکومت کو بچائیں۔ خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان وسیم اختر کا کہنا تھا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل اپنا امیدوار دست بردار کرا دیں گے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، سندھ اور کراچی کے ایشوز سے بھی ریلیٹڈ اور سیاسی حوالے سے بھی۔ ناصر بھائی اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کی ریکویسٹ تھی کہ MQM اپنے کینڈیڈیٹس کو ان کے حق میں وڈرا کرے، تو رابطہ کمیٹی نے خالد بھائی کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وقار مہدی بھائی جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سینٹ کے لیے، ان کے حق میں MQM پاکستان اپنے کینڈیڈیٹ کل انشاءاللہ وڈرا کر لے گی، اور امید کرتے ہیں، خواہش ہے کہ وقار مہدی بھائی اس سیٹ پہ آنے کے بعد کراچی کے ایشوز، کراچی کے مسائل، سندھ کے ایشوز
جو ہیں وہ اس فورم پہ ضرور سامنے لے کے آئیں گے اور جو ان کا فرض ہے اور جو کراچی والوں کا حق ہے، سندھ والوں کا حق ہے، اس پہ آواز بلند کریں گے، جدوجہد کریں گے. تو انشاءاللہ کل ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لے گی. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد حلقہ بندیوں اور بلدیاتی بل پر کافی حد تک کامیاب ہونے کی نوید بھی سنائی. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگ گئی، جبکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں اعلیٰ سطحی مذاکرات بھی ہوئے ہیں. ایم کیو ایم وفد میں خواجہ اظہار الحسن محمد حسین سمیت دیگر ایم کیو ایم کے اہم رہنما شریک ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب شریک ہوئے. ایم کیو ایم کے وفد اور سندھ حکومت کے درمیان ملاقات میں بلدیاتی انتخابات، مردم شماری اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی معاہدے پر عمل بلدیاتی حلقہ بندیوں سمیت دیگر امور زیر بحث آئے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں اعلیٰ سطحی مذاکرات. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگی. ایم کیو ایم وفد میں خواجہ اظہار الحسن محمد حسین سمیت دیگر ایم کیو ایم کے اہم رہنما بھی شریک ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک ہوئے. ایم کیو ایم کے وفد اور سندھ حکومت کے درمیان ملاقات میں بلدیاتی انتخابات، مردم شماری اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے بلدیاتی حلقہ بندیوں سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے. اگر صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم لڑیں گے، ورنہ ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ایسا کہنا ہے. کہا کہ اگر ہم الیکشن نہیں لڑے تو اور کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. کہا کہ بہت بڑی سازش کے تحت حلقہ بندیوں کے ذریعے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی. کہا کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ نئی مردم شماری ہونے جا رہی ہے. ہم جلد ایماندارانہ انتخابات چاہتے ہیں. اسمبلی میں خاندان نہیں بلکہ عوام ہونے چاہیے. صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم لڑیں گے، ورنہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. اگر ہم الیکشن نہیں لڑے تو اور کوئی دوسرا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بہت بڑی سازش کے تحت حلقہ بندیوں کے ذریعے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے. ہماری بڑی کامیابی ہے کہ مردم شماری ہونے جا رہی ہے. ہم جلد ایماندارانہ انتخابات چاہتے ہیں. کہا کہ اسمبلی میں خاندان نہیں بلکہ عوام ہونے چاہیے. ایک سب نیشنلٹی نے صرف اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلی پر آواز اٹھا کر، مقدمہ رکھ کر اور اپنے معاہدوں میں نقطہ رکھ کر، اس کا پہلا نقطہ رکھ کر دوبارہ موقع دیا ہے. اب یہ موقع میرے اور آپ کے پاس ہے. اب ایم کیو ایم مل کر، گلی گلی کی ایم کیو ایم، محلے محلے کی ایم کیو ایم، شہر شہر کی ایم کیو ایم، اور مہاجر اپنے آپ کو گنوائیں، جو گننے نہ آئے ان کے پاس پہنچ جائیں. اگر آپ کی گنتی صحیح ہو گئی تو پھر ہم صوبے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی اور کر رہا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی بہت چھوٹی موٹی جگہوں پر مطالبے تو کیا گئے ہیں. حیدرآباد کی معاہدوں میں شکل میں نہیں آیا تھا، نہ اس کی کبھی تجدید کی گئی، نہ اس پہ کبھی تبصرہ کیا گیا، نہ اس کا تکرار کیا گیا، نہ تقاضا کیا گیا. صوبہ سندھ میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری ہیں. ایسے میں سندھ اسمبلی میں صوبے بھر میں حالیہ سیلاب اور بارش کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بات کرنے کے لیے تحریک التوا پیش کر دی گئی.
तमाम सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अल्तवा पढ़ी गई जिसे मंजूर कर लिया गया, जबकि पीर से ऐवान में तमाम मेंबरान सूबे में होने वाली सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों पर तफसीली बहस करेंगे। पीटीआई के मेंबर असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह ने एक और तहरीक अल्तवा पेश करने की कोशिश की जिसे स्पीकर ने रोक दिया। सिंध असम्बली का इजलास पीर की सपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सिंध असम्बली में सूबे भर में सैलाब और बारिश की तबाहकारियों पर तफसीली बात करने के लिए तहरीक अल्तवा पेश कर दी गई। तमाम सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अल्तवा पढ़ी गई जिसे मंजूर कर लिया गया। पीर से ऐवान में तमाम मेंबरान सूबे में होने वाली सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों पर तफसीली बहस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह ने एक और तहरीक अल्तवा पेश करने की कोशिश की जिसे स्पीकर ने रोक दिया। सिंध असम्बली का इजलास पीर की सपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की, जिन्होंने कराची के इंडस अस्पताल का दौरा किया है, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करके मरीजों को फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने गवर्नर सिंध को अस्पताल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इंडस अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात बेमिसाल है। अमराज क़ल्ब में और दीगर बीमारियों के मरीजों के लिए अस्पताल नुमाया काम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरा भरपूर ताउन इंडस अस्पताल के साथ रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इंडस अस्पताल का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जबकि मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को इंडस अस्पताल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कामरान टिसोरी ने कहा कि इंडस अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात बेमिसाल है। साथ ही साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मजीद ये भी कहा कि मेरा भरपूर ताउन इंडस अस्पताल के साथ रहेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बराए खुसूसी अफराद की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया, जबकि तकरीब में एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मेंबर कौमी असम्बली सैयदा किश्वर जहरा, सेनेटर्स, एमएनएज और एमपीएस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर खुसूसी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। जबकि मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कश्मीर रोड पर खुसूसी अफराद के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। मेंबर कौमी असम्बली सैयदा किश्वर जहरा ने अपने खुसूसी फंड से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में हिस्सा लिया। खुसूसी अफराद यहाँ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि खुसूसी अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बराए खुसूसी अफराद के इफ्तिताही तकरीब का इनकाद। तकरीब में एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मेंबर कौमी असम्बली सैयदा किश्वर जहरा, सेनेटर्स, एमपी, एमएनएज, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और खुसूसी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि मुर्तजा वहाब ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर रोड पर खुसूसी अफराद के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। सिंध कल्चरल फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रिबन काट कर किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फेस्टिवल में लगे स्टॉल्स का भी दौरा किया, जबकि फेस्टिवल देखने के लिए आने वाली आवाम से भी वो घुल मिल गए। कराची मेरीटाइम म्यूजियम में सिंध कल्चर फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रिबन काट कर किया। कल्चर फैमिली फेस्टिवल में गुलकार अरशद महमूद ने सिंधी जबान में गाना पेश किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि सकाफती दिन मनाने से आप पूरी दुनिया में अपने मुल्क का एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज भेज रहे होते हैं, और सिंध का जो सूफिया कराम की धरती है, यहाँ पर इस कल्चर डे को मनाना ये समझता हूँ कि मोहब्बत का पैगाम है। और इसी तरह हम सब मिलजुल कर मोहब्बत के इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहें, और सिर्फ दिन की मुनासबत से नहीं बल्कि हम एक दूसरे को भी इसी तरह से बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता तमाम
कौमियतों के दरमियान रखें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फैमिली फेस्टिवल के इनेकाद में ताउन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख समेत व दीगर में शील्ड भी तकसीम की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फेस्टिवल में लगे स्टॉलों के मुआयने के दौरान आम पब्लिक में से भी मुलाकात की। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जमीर अहमद अब्बासी का तबादला कर दिया गया। आपको बताएं कि जमीर अब्बासी को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की भी हिदायत कर दी है। 18 ग्रेड के नौरोज खान अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिए गए। नौरोज खान डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तैनात थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जमीर अहमद अब्बासी का तबादला कर दिया गया। जमीर अहमद अब्बासी को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। ग्रेड 18 के नौरोज खान अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिए गए। नौरोज खान अब्बासी डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तैनात थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और यहां आपको बताएं कि जिला वस्ती में खेल के मैदानों का तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगा है। नॉर्थ कराची करेला मोड़ का ग्राउंड मंगल बाजार और पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया गया, जबकि ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार लगने से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा है। ग्राउंड में न बैठने के लिए माकूल इंतजाम है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स का कोई नामो निशान है। मकीनों का कचरे के अंबार खत्म करने और ग्राउंड के तिजारती मराकज के इस्तेमाल की रोकथाम का मुतालबा। जिला वस्ती में खेलो तफरी के मकामात भी बदउनवान अफसरान की मिली भगत से किराए पर चलने लगे। नॉर्थ कराची करेला मोड़ में खेल के मैदान को पार्किंग और बचत बाजार की आड़ में मुख्तस करके नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों से दूर कर दिया गया। ग्राउंड में पार्किंग माफिया के डेरे और बचत बाजार के नाम पर चलने वाले मंगल बाजार ने खेल के मैदान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार लगने से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा। खेल के मैदान में तफरीही सहूलियात भी मादूम दिखाई देती हैं। तबाहाल ग्राउंड में ना बैठने के लिए कोई माकूल इंतजाम है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान बाकी है। मकीनों ने कचरे के अंबार और ग्राउंड के तिजारती मकासद के इस्तेमाल की रोकथाम का मुतालबा करते हुए तबाहाल सूरत हाल का जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जिले और बल्दियाती इंतजामिया को ठहरा दिया। यहाँ पे हाल देखिए आप क्या सिस्टम करा हुआ, चारों तरफ कचरा ही कचरा, चारों तरफ कचरा ही कचरा है। देखो स्टैंड बनाए हुए दो, एक उधर स्टैंड है, एक इधर स्टैंड है, चारों तरफ कचरा ही कचरा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पहले ये पार्क था, अब पार्क को स्कूल में तब्दील कर दिया जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए सिस्टम कि लेडीज गर्ल्स का कॉलेज बना दिया। इतनी बड़ी जगह है। ये मंगल बाजार लग रहा है, दो स्टैंड है, ये स्टैंड खत्म कराया जाए, कोई कॉलेज बनाया जाए। ये देखें, आप खुद देखें, इधर बच्चे गेंद बल्ला खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने रिहायशी है, सामने घर बने हुए, इधर कचरा है। ये देखें, आप खुद देखें। ऐसे बात जो इंतजामिया है यहाँ की, वो इन चीज़ों को एक्शन लेना, कचरा वचरा यहाँ से उठवाएं। जो पठान वठान जो गली से कचरा उठाते हैं वो यहाँ फेंक देते हैं, डायरेक्ट यहाँ फेंकने से अच्छा है कि वो जो है जिसका मकाम है वहाँ जाके फेंका जाए ना कचरा। पहले तो इंतजामिया थी, काम हम करती थी, अब तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। नॉर्थ कराची करेला मोड़ और कुर्बो जवार के रिहायशियों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि इस खेल के मैदान से बचत बाजार और पार्किंग माफिया का कब्जा खत्म करवा कर इसे खेलों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल होकर मुआशरती बुराइयों से बच सके। और यहाँ आपको बताते चलें कि जिला वस्ती की अहम शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गई। पानी की लाइन में रसाव के बायस मुतादिद अंदरूनी और बैरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ पर पानी की लाइन लीक होने से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क की खस्ता हाली के बायस एक ट्रैक को आमद और रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मकीनों का कहना है कि जब जब पानी की सप्लाई बहाल होती है तब तब शाहरा पर पानी का रसाव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है।
कराची के जिला वस्ती में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के तबाहशुदा निजाम ने शाहराहों को खंडरात में तब्दील कर दिया। पानी के लाइनों में रसाव के बायस बेशतर अंदरूनी और बैरूनी शाहराहें टूट फूट के बायस तबाह हो गयीं। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ पर भी पानी की लाइन में लीकेज से अहम तरीन शाहराह पर गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क की खस्ता हाली के बायस एक ट्रैक को आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ के मकीनों का कहना है कि जब जब पानी की सप्लाई बहाल होती है तब शाहराह पर पानी का रसाव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। परेशानी रोजाना ही परेशानी है, कभी पानी कभी कुछ कभी मसले कभी परेशानी है। रात को देखा करें कितना बुरा हाल होता है यहाँ पे। बस अपील यही है कि इसको बनवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की। आए दिन गाड़ियाँ खराब हो जाती है हमारी, फिर धक्के मार के हमें लाना पड़ता है। बस ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और नसीहत दे कि ये जल्द से जल्द बना दें। ये मजदूरों का अड्डा है और ये पानी है, लेन है यहाँ का पानी का, साफ पानी जो लोग पीते हैं। अभी आप देखो ये कितना खड्डा माशाल्लाह खोला हुआ है। परेशानी किसको, आवाम को है ना। और दूसरी बात ये है सर, यही पानी इंसान पीता है और यहाँ पर आए दिन मरे हुए कुत्ते पड़े हुए होते हैं। ये आवाम पानी पीता है, वो आवाम बीमार हो जाता है साहब। ये तो समझ लो कराची में लगा हुआ है और ये तो सालों से ऐसी पड़ा हुआ है। ये खुदाई अभी हुई है, रोड तो पुराना ही खराब हुआ और अब खुदाई करके छोड़ा हुआ है कि लाइन डलेगी, पानी आएगा, ना पानी आ रहा है। इसमें एक गाड़ी भी गिर गई है इसमें भी बारिश हो गई, उसके पानी भरा हुआ था इसमें लाइन का ना। यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि पानी की लाइनों की मुरम्मत करके कीमती साफ पानी को जाया होने से बचाया जाए और सड़क की बहाली के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाए। अवाम का कहना है कि जब पानी खोला जाता है तो ये सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। 2-3 माह से यही हाल है। मौशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया के आंखों से ओझल होकर खंडरात में तब्दील होने लगा है। आपको बताएं कि बड़ा बोर्ड को गोलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गई। पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया। मौशी अब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया की आंखों से ओझल होकर खंडरात में तब्दील होने लगा है। बड़ा बोर्ड को गोलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बदतरीन टूट फूट का शिकार है। पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया। मौशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची इंतजामिया की आंखों से ओझल होकर खंडरात में तब्दील होने लगा है। कराची के इलाके बड़ा बोर्ड को गोलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी इस वक्त बदतरीन टूट फूट का शिकार है। पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया। और अब रुख करेंगे जिला वस्ती के इलाके दस्तगीर का। आपको बताएं कि कराची के इलाके दस्तगीर में खुले मेन होल से मकीनों को हादसात का खदशा है। स्कूल से मुत्तसिल खुली मेन लाइन के बायस गंदगी के ढेर लग गए। तालिबात का स्कूल और जाना भी दुश्वार हो गया, जबकि स्कूल इंतजामिया ने शिकवा किया कि कई बार मुतालिका हुकाम को आगाह किया मगर किसी ने दरख्वास्त पर अपने कान नहीं धरे। दस्तगीर में खुले मेन होल से मकीनों को हादसात का खदशा है। स्कूल से मुत्तसिल खुली मेन लाइन के बायस गंदगी के ढेर। तालिबात का स्कूल आना जाना भी दुश्वार हो गया। स्कूल इंतजामिया ने शिकवा किया कि कई बार मुतालिका हुकाम को आगाह किया मगर किसी ने दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। शहर कराची के इलाके दस्तगीर में खुले मेन होल से मकीनों को हादसात का खदशा है, जबकि स्कूल से मुत्तसिल खुली मेन लाइन के बायस गंदगी के ढेर लग गए। तालिबात का स्कूल आना और जाना भी दुश्वार हो गया। स्कूल इंतजामिया ने कई बार शिकवा किया कि कई मरतबा मुतालिका हुकाम को आगाह कर चुके हैं मगर किसी ने दरख्वास्त पर अपने कान नहीं धरे। जिला बस्ती में इंतजामिया की नाअहली और गफलत ने जिला बस्ती के पार्कों को उजाड़ कर रख दिया है। आपको बताएं कि फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क खंडरात में तब्दील हो गया है, जबकि पार्क में कब्जा माफिया ने भी अपने पंजे गाड़े हुए हैं। जिला बस्ती में इंतजामिया की नाअहली ने पार्कों को उजाड़ कर रख दिया। फेडरल एरिया ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। पार्क में कब्जा माफिया ने भी पंजे गाड़ दिए। ब्लॉक 15 का फैमिली पार्क इंतजामिया की आंखों से अब भी ओझल है।
ضلع وسطی میں انتظامیہ کی نااہلی نے پارکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. ضلع وسطی کے علاقے فیڈل بیریا بلاک 15 کا فیملی پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، جبکہ اس پارک میں قبضہ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. ضلع وسطی اس وقت مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. اہم شہروں پر اسٹریٹ لائٹس غائب ہیں، جبکہ سڑکوں کی حالت ٹوٹی پوٹی ہے، جبکہ رہی صحیح کسر انتظامیہ کی غفلت نے پوری کر دی. انتظامیہ کی نااہلی نے پارکوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا. فیڈل بیریا بلاک 15 کا فیملی پارک اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پارک میں قبضہ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. ضلع وسطی کی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت نے پارکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. فیڈل بیریا بلاک 15 کا فیملی پارک اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کہتے ہیں کہ یہاں کچرا کنڈیاں 2 شفٹوں میں صاف کریں. جو کچرا کنڈیاں سڑک کے کنارے قائم ہیں انہیں فوری ہٹایا جائے. 10 دن کے بعد تمام علاقوں کا دوبارہ وزٹ کر کے صفائی ستھرائی کی صورتحال کو چیک کیا جائے گا. نوتاز آباد زون، گلبرگ زون اور لیاقت آباد زون کا دورہ کر کے اہم شاہراہوں اور علاقوں اور کچرا کنڈیوں کی صفائی ستھرائی کا معائنہ کرتے ہوئے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں خصوصی صفائی مہم کے دوران گندی گلیوں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے. ابھی تک 240 گلیاں کلیئر کر دی گئی ہیں. گندی گلیوں کی صفائی شہریوں کا بہت دیرینہ مسئلہ تھا، جسے ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے تمام ریسورسز جلد از جلد مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جا سکے. اس سلسلے میں یہاں کی عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ بحیثیت ذمہ دار شہری تعاون کرتے ہوئے کچرا تھیلیوں میں بند کر کے مقررہ جگہ پر رکھیں یا کچرا دان میں ڈالیں. کچرا کھلی جگہ یا نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظمانی، ڈپٹی ڈائریکٹر عادل ہاشمی، نجی کمپنیز کے عہدیداران اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے، جس کے لیے جسمانی فٹنس بے حد ضروری ہے. جسمانی فٹنس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے سپورٹس کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. سپرنٹینڈنگ انجینئر ایم این ڈی مبین شیخ اور ایگزیکٹو انجینئر بی اینڈ آر سید جمال کے ہمراہ ڈی ایم سیز اسپورٹس کمپلیکس نست کارساز میں فلڈ لائٹس کی تنصیب اور دیگر سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کمپلیکس میں باسکٹ بال اور اسکیٹنگ کے لیے جگہ مختص کی جائے گی. اسپورٹس کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایم سیز اسپورٹس کمپلیکس اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے بہترین جگہ ہے. فلڈ لائٹس کی تنصیب کے بعد یہ مزید بہتر ہو گیا ہے. اسپورٹس کمپلیکس میں باسکٹ بال اور اسکیٹنگ کے لیے جگہ مختص کی جائیں، جبکہ تعمیراتی لحاظ سے جو کام ہے انہیں بھی سر انجام دیا جائے. اسپورٹس کی سرگرمیوں کے ذریعے صحت مند معاشرے کی تشکیل میں جہاں تک ممکن ہو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر مبین شیخ نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ گراؤنڈ میں فلڈ لائٹ سے اس گراؤنڈ کو روشن کر دیا گیا ہے، جس کے بعد گراؤنڈ اعلیٰ معیار کے گراؤنڈ کا منظر پیش کر رہا ہے. مزید بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. نیو کراچی صنعتی اور تجارتی ایریا کے ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم کو ایسوسی ایشن کے دفتر میں اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر ملاقات کی. نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجروں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں انفراسٹرکچر کی بحالی اور تجاوزات کا خاتمہ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کو الیکٹرانک ٹیکس کے نظام رجسٹر کر کے ٹیکس کلیکشن کو صاف شفاف بنانا چاہتے ہیں. بارش کے بعد تو ہم نے میگا پیچ ورک اور روڈ پیچ ورک کے کام شروع کر دیے تھے ڈی ایم سی کی طرف سے. باقی کے ایم سی کے ڈی اے یہ سارے بھی لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ابھی میگا پروجیکٹ میں نمک بینک پہ کام ہو رہا ہے, یوبی اسپورٹ کمپلیکس پہ بات ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, شارع نورجہاں پہ کام ہو رہا ہے.
बाकी जो स्कीम्स इस बार आई थी बजट के अंदर 10-12 अरब रुपए की, वो ऑन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है इंशाल्लाह। मीटिंग में एन काटी के सदर फैसल मोइज ने एन काटी में वाक़े मुख्तलिफ सेक्टर्स की ज़बूहाली के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहास सलीम ने मसाइल को हल करने में बहुत संजीदा कोशिशें की हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को आज हमने बुलाया था, हमारे मसाइल थे इंक्रोचमेंट के हवाले से, हमारे कुछ मसाइल थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और डीसी साहब बहुत दिनों से लाइजन में है हमारे, और ही वांट्स टू वर्क फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिस तरह ये काम कर रहे हैं। तो आज इन्होंने हमें बिल्कुल ये चीज़ बताई है कि वील मेक इट श्योर कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और इनके एसीज के साथ, हमारे जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बेसिकली नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये सबसे बड़ी एसएमई है कराची की। इस मौके पर टाउन एसोसिएशन के ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर को गैस और बिजली की फराहमी में तात्तुल और इलाके में तजव्वुज़ात के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ बिलाल हसन, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि हम सब सरकारी वसाइल के अमीन हैं, 100% अमल करने का अहद करें कि इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने में किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे। जिला कौंसिल की हदूद में वाक़ यूनियन कौंसिलों में स्प्रे मशीन की तकसीम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो का कहना था कि यूनियन कौंसिल हमारे मातहत नहीं, इसके बावजूद हम इनके साथ ताउन करते हैं ताकि अहले इलाका को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं हो। हुकूमत सिंध ने हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए हैं, जिस पर इनके मातहत हर इदारा अपने हिस्से का काम सरअंजाम दे रहा है। मजीद कहना था कि इस सिलसिले में जिला कौंसिल को इस जिम्मेदारी सपुर्द की गई थी कि स्प्रे मशीन की खरीदारी करके अपनी हदूद की हर यूनियन कौंसिल में तकसीम करे। मजीद बोले कि हमने अपना काम बाखूबी दयानत के साथ अदा कर दिया है, अब ये यूनियन कौंसिल्स का फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वसाइल की कमी से मुश्किलात जरूर आती हैं, मगर काम की लगन अगर सच्ची हो तो कामरानी का रास्ता जरूर मिलता है। डेंगू के हवाले से बहुत जल्द स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें तमाम यूनियन कौंसिल्स की शराकतदारी से मजीद तकवियत के साथ उमूर सरअंजाम पाएंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, अफसर आला मालियात इफ्तिखार डायो, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक, डायरेक्टर फ्यूमिगेशन शफी बलोच, सीनियर मालियाती अफसर मोहसिन जाखरानी, यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज गुलाम रसूल बलोच, आसिफ मिर्जा, फहीम जोकियो, जलील मेमन, इम्तियाज अली और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि न्यू टाउन को नेशनल स्टेडियम से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बद इंतजामी उमूर का शिकार होकर तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गहरे गढ़ों और उबलते गटरों के सबब शाहरा का बुरा हाल है, जहां ट्रैफिक जैम होने समेत हादसात का होना भी अब मामूल बन चुका है। ये मंजर न्यू टाउन को नेशनल स्टेडियम से मिलाने वाली मरकजी सड़क का है, जो बद इंतजामी उमूर का शिकार होकर तबाही के नहज पर है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिले इंतजामिया की नाअहली के बाइस मरकजी सड़क का बुरा हाल है, जहाँ ट्रैफिक के जाम होने समेत सुबह शाम और रात के औकात में हादसात का होना भी मामूल बन के रह गया है। शहरी कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को 70% से जायद रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत बुरे हाल है सड़कों के, आपके सामने देखें कि मुझे बंदा मरीज टाइम पे नहीं पहुंच सकता, और ये हम जैसे अभी देखें ना रास्ते किस तरह आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मामलात हो जाए, गाड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी रुक जाती है, पीछे से बंदा तेज आ रहा है, मामला बहुत ख़राब है। आजकल माशाल्लाह आपके सामने रोडे है कि हर कोई बाइक वाला जो ना कटोरे के अंदर चला जाते, गिर जाते। अब हम ये सब्जी मंडी सामने मार्केट से आ रहे, हमारा हुलिया देखो ये सब बलूचिस्तान से यानी बाइक पे आया हुआ इस तरीके से। इसका कोई बारिश नहीं है, तो हुकूमत चिल्ला रही है काम हो रहा है, काम के आके देखो तो सही। असेंबलियों की लड़ाइयों से बाहर आओ तो। अब पहले कराची था, अब खत्म हो गया। अब ये जब से ये आए नए लूटने वाले डाकू है। जरूरत इस अमर की है कि मुतालिका महकमे हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ मरकजी सड़क से सीवरेज के नकारा निजाम को दुरुस्त करे, वहीं हंगामी बुनियादों पर तबाहाल सड़क की असरनो मरम्मत भी करे, ताकि शहरियों को मंजिल मकसूद तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में सड़क को खोद कर आवाम के लिए मौत का कुआं बना दिया गया। शहरी जान खतरे में डालकर खंडर बनी सड़क से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों के लिए खोदा गया रोड वबाले जान बन गया।
यह गुलिस्तान हिजरी स्कीम 33 नस्ल गुलजार हिजरी थाने के साथ सेवरेज लाइनों के नाम पर खोदा गया रोड खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गहरा गड़ा भरने के लिए शायद किसी शहरी के गिरने या जान गंवाने का इंतजार किया जा रहा है। सड़क से गुजरना लोगों का महाल है तो रहने वालों के लिए टूटी सड़क और गड़ा वबाले जान है। इलाका मकीन फराज अहमद, शायान मजीद, चौधरी गफूर और बिलाल अंसारी कहते हैं बारिश के बाद से यहाँ ये हाल है जिसने जिंदगी अजीरन कर दी है। बारिश हुई थी, बारिशों के बाद जो है व्हाइट हाउस में सामने पानी भर गया था, तो जिसकी वजह से पानी की निकासी के लिए खुदाई की गई थी। तो ये है कि सामने वाला रोड जो है वो तो बंद कर दिया, लेकिन ये वाला रोड बंद नहीं किया। अब यहाँ से सामने से फ्लैट बने हुए, यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लेडीज़ हैं, फैमिलीज आते हैं, लोगों को परेशानी का सामना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं जो रात में पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। फैमिली को यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं खुद यहाँ सामने पायनियर कैसल का रिहायशी हूँ, तो यहाँ पे बहुत शिकायतें हैं। हम लोग अपनी रातों को फैमिलियाँ यहाँ अपार्टमेंट से गेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। व्हाइट हाउस वालों ने अपनी साइड तो बना ली है, कहने ये पूरा खुदा हुआ है पूरा इलाका, और मेन रोड बंद करा हुआ है। गलियों से सर्विस रोड से लोग जा रहे हैं, पानी है, औरतें बच्चे, बड़ी परेशानी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये मेन रोड है इसको सही करें। और लोग परेशान हैं यहाँ बहुत, आए दिन जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है। अगर यूनिवर्सिटी की बसें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप वाली गुजरती हैं वो भी परेशानी में हैं होते हैं, जगह बिल्कुल रोड जाम हो जाती है। मैं खुद रिहायशी हूँ पायनियर कैसल में, वाइट पैलेस, इसके आगे आप देखें सुपर हाईवे लगता है, पीछे मेरे देखेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी लगती है, और सीधे हाथ पे देखेंगे तो कनिज़ फातिमा का जैसा जो है पोश इलाका है, और उसके अंदर ये हाल है। देखें आप, अगर आप हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो किस तरह से हमारी जो गाड़ियाँ किस तरह से जो है जा रही हैं डबल रोड पर, और हमारे बच्चे जो इधर खेलते हैं, फैमिलीज, जिस तरह भाई ने बोला कि फैमिलीज हमारी जा नहीं सकती हैं। तो सारे यहाँ के जो महकमे उन लोगों ने आके इस रोड को पूरा इस तरह से खोद के डाल दिया है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी हादसात भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। बाइक वाले अक्सर जिनको नहीं पता है वो इसमें गिर जाते हैं आके। इसी की वजह से जो है हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रात के वक्त पूरा ये होटल जो है, इन होटलों की वजह से ये रोड पूरा कवर्ड होता है। यहाँ से फैमिलीज़ को बंदा नहीं लेके जा सकता, और यहाँ से भी अपना रास्ता नहीं अख्तियार कर सकता क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है। तो हमको मजबूरन आगे एक अंधेरी रास्ते से, सुनसान जगह से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ा। शहर कराची में बारिशों से होने वाली तबाही को कई माह गुजर गए, मगर इन तबाह सड़कों की तामीर के लिए अब तक इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मरीर 15 की मरकजी सड़क खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक तरफ की सड़क मुकम्मल खत्म हो गई, जहां गंदे पानी ने बाकी रही कहीं कसर को भी पूरा कर दिया, जबकि यहां रहने और यहां से गुजरने वाले सख्त परेशानी से दो चार हैं। ये है मलीर 15 की मसरूफ तरीन सड़क जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक जानिब सड़क दरमियान से टूट जाने के बाद शहरी किनारों से गुजरने पर मजबूर है, दूसरी जानिब एक सड़क मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रही। खुले मेन होल ना बनते हैं, ना ही उन पर ढक्कन लगते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई माह से इस अजियत से दो चार हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। ये हाल है भाई हमारे मलीर का, आप देख सकते हैं, इतना गटर का पानी है, सामने हमारा घर है, हम लोग रह नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। सुबह भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है इस गिराई से, सही है, इतना पानी यहाँ पर रुका हुआ है, पूरे रोड का बुरा हाल हुआ हुआ है। पानी ये 2 महीने हो गए ऐसे बह रहा है, तो नया रोड है बिल्कुल बेकार हो गया, टूट फूट हो गया है, और दुकानदार बहुत परेशान है यहाँ पे, और लिहाजा जल्द से जल्द किया जाए ताकि दुकानदार भी आसरे रखें। मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, गिर जाते हैं लेडीज़ के साथ, सही है, कार वाले जा रहे हैं वो फंस जाते हैं। हम लोग भी परेशान आ गए, ये मेरी दुकान है, मैं भी परेशान हूँ। 3 दिन से लाइट भी नहीं है, और पता नहीं कौन है कुरमान है हमारे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। शहरियों का कहना है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जिस सड़क से गुजरो ऐसा ही मंजर पेश करती नजर आएगी। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।